Welcome students to my YouTube channel, that is Tricky Chemistry. Students, today I am going to teach you electric properties. Now electric properties are of three types: conductor, insulator and semiconductor. These are explaining on the basis of molecular orbital theory. Now see on the board, conductor means those substances which conduct electricity are known as conductor. There is no energy gap between valence band and conduction band. You can see the diagram of lithium. In this, valence band is partially filled and conduction band is empty. When electron jump from valence band to conduction band, then they conduct electricity. You can see the another example of beryllium. In this case, 1s2, 2s2, 2p, 0. In this case, valence band is completely filled, but there is some overlap band is also present between valence band and conduction band. In this case, conduction band is also empty. Valence band and conduction band overlap due to their less energy difference. 2s and 2p atomic orbitals have less energy difference. That's why they overlap with each other. Now next point is there is no energy gap between valence band and conduction band. Their conductivity range is 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ohm inverse meter inverse. These are of two types. First one is metallic, another one is electrolytic. Metallic conductor are those conductors which conduct electricity in solid state as well as in molten state and in aqueous state. But electrolytic conductor, they do not conduct electricity in solid state, but they conduct electricity in molten state as well as in aqueous state. Their conductivity decreases with rise in temperature due to vibration of positive ions which create resistance in the path of electrons. इसका मतलब ये है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इनकी जो कंडक्टिविटी है इनकी मेटालिक कंडक्टर की, वो क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी. डिक्रीज होने का रीजन क्या होता है, इनमें पॉजिटिव आयंस क्या करने लगते हैं, वाइब्रेशन करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है. इसके एग्जांपल होते हैं सिल्वर, ऑरम, प्लेटिनम, लिथियम, कॉपर. ऑल मेटल्स आर मेटालिक कंडक्टर. देयर कंडक्टिविटी increases with rise in temperature due to mobility of ions. इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है बच्चों, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आयंस क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. इसके एग्जांपल होते हैं NaCl, KCl, ZnS. नेक्स्ट इज इंसुलेटर. देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, insulator, those substances which do not conduct electricity in any state. Any state means they do not conduct electricity in solid state, in molten state and in aqueous state are known as insulator. There is large energy gap between valence band and conduction band. देखिए बच्चों आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है. इन दोनों के बिटवीन क्या होता है, लार्ज एनर्जी गैप होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन जोन. The energy gap present between valence band and conduction band, that is known as forbidden zone. Their conductivity range is between 10 to the power minus 20 to 10 to the power minus 10 ohm inverse meter inverse. यानी कि इनकी conductivity range क्या होती है, 10 to the power minus 20 से 10 to the power minus 10 ohm inverse meter inverse होती है. इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, प्लास्टिक, रबर, सल्फर, ग्लास, ड्राईवुड एंड डायमंड. डायमंड में जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है, 579 किलो जूल फॉर सेमीकंडक्टर. देयर इज स्मॉल एनर्जी गैप प्रेजेंट बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. देयर कंडक्टिविटी रेंज इज 10 to the power minus 6 to 10 to the power 4 ohm inverse meter inverse. These are of two types. First one is intrinsic semiconductor और pure semiconductor. देखो बच्चों इसमें क्या होता है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, these substances which behaves as insulator at 0 Kelvin temperature. यानी कि 0 Kelvin temperature पे किसकी तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं अबव 0 Kelvin और रूम टेम्परेचर पे तो क्या होता है, sufficient amount of energy is supplied to the crystal, then they act as semiconductor because some covalent bond may break due to thermal energy. जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होंगे, इनके कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे. जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे.
जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये अपने पीछे क्या कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव होल क्या कर देंगे, पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अपनी पर्टिकुलर साइड से, तो उस साइड पे क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव होल और पॉजिटिव चार्ज ये क्या कर देगा, लीव कर देगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन देखिए आप कहाँ है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है और पॉजिटिव होल कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं, प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम। जब हम बात करते हैं प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम की, तो इसकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी गैप होता है वो होता है 106 किलो जूल पर मोल, और जर्मेनियम का एनर्जी गैप होता है 68 किलो जूल पर मोल। अब हम यहाँ पे इसका डायग्राम देखेंगे कि कितना एनर्जी गैप होता है और कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये सेमीकंडक्टर का डायग्राम है, इसके बिटवीन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बिटवीन क्या होता है, ये आपका क्या हो गया, वैलेंस बैंड, और ये क्या हो गया, कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल एनर्जी गैप प्रेजेंट होता है यहाँ पे, स्मॉल एनर्जी गैप, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन जोन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जैसे हमने सिलिकॉन लिए, तो सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो ये क्या कर सकता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। देखिए जैसे यहाँ पे ये 4 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, हर एक सिलिकॉन क्या कर रहा है, 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 4 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं है, फ्री नहीं है। कब, 0 केल्विन टेम्परेचर पे एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसलिए ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं क्या, अबव 0 केल्विन टेम्परेचर पे, जब आप क्या कर देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनमें से क्या हो जाएंगे, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। अब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ये इस तरीके से ये बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इस तरीके से हम क्या करते हैं, बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप क्या करेंगे, टेम्परेचर राइज कर देंगे तो क्या होगा, इनमें से कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। सम ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रेक। जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो हम क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से क्या हो गया, अब ये क्या हो गए, फ्री हो गए। फ्री हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, इलेक्ट्रॉन यहां गया तो पीछे क्या बच जाएगा, पॉजिटिव होल और पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा बच्चों। क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव होल, जिसका डायग्राम मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वैसे वैसे वो पीछे क्या करते जाएंगे, पॉजिटिव होल क्रिएट करते जाएंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी जो कंडक्टेंस होती है वो क्या होती है, वेरी पुअर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा कंडक्ट नहीं कर पाते। तो हम क्या करते हैं, द कंडक्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज वेरी पुअर, सो दैट टू एनहांस और इंक्रीज द कंडक्टेंस सम electron rich and electron deficient impurities are added. This addition of impurity is known as डोपिंग। यानी कि हम क्या करते हैं, इनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस इंक्रीज करने के लिए हम इनमें क्या करते हैं, इंप्योरिटीज ऐड करते हैं। वो इंप्योरिटीज इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकती है। तो इसके बेसिस पे ये 2 टाइप के होते हैं, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट है एन टाइप और इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए These are the combination of group 14 element and group 15 element. अब ग्रुप 14 में आपके पास कौन से आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये आते हैं, और ग्रुप 15 में कौन आता है, फास्फोरस, आर्सेनिक। तो क्या होता है, ग्रुप 14 के पास कितने एलिमेंट, ग्रुप 14 एलिमेंट्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ग्रुप 15 एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या करते हैं, जब लिक्विड सिलिकॉन में हम क्या करते हैं, लिक्विड फास्फोरस या फिर लिक्विड जर्मेनियम में लिक्विड आर्सेनिक की इंप्योरिटी ऐड करते हैं और उसको कूल करते हैं। तो क्या होता है, सम ऑफ इन प्लेस ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज आर प्रेजेंट। देखिए अब सिलिकॉन 4 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है क्योंकि उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फास्फोरस के पास कितने होते हैं,
5 होते हैं। अब 4 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड तो बन गए, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया, किसके पास बच गया, फास्फोरस के पास। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज इनहेंस द कंडक्टेंस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। समझ में आई के बाद? तो ध्यान से देखिए, जब हम क्या करते हैं, ग्रुप 14 को ग्रुप 15 में मिक्स करते हैं या फिर ग्रुप 15 को ग्रुप 14 में मिक्स करते हैं, ऑलवेज फॉर्म एन टाइप सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर। द सेकंड पार्ट ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज पी टाइप और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नाउ सी द स्टूडेंट, इन दिस these are the combination of group 14 and group 13 elements। अभी मैंने आपको बताया कि ग्रुप 14 एलिमेंट्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहीं ग्रुप 13 एलिमेंट्स के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब ग्रुप 13 को आपने क्या किया है, डोप किया है किसमें, 14 में। तो क्या होगा, ग्रुप 13 के पास तो 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ग्रुप 14 के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आप यहाँ डायग्राम में देखिए, ग्रुप 13 एलिमेंट कौन होते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम। तो आपने इसमें ये डोप किया, सिलिकॉन में आपने क्या कर दिया, बोरॉन डोप कर दिया। तो देखिए 3 तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, अब एक क्या बच गया, पॉजिटिव होल बच गया। किसके पास बच गया, बोरॉन के पास, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन है नहीं। अब क्या होगा, सिलिकॉन अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, इसमें डोनेट कर देगा। जब ये डोनेट करेगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होल क्या हो जाएगा, सिलिकॉन के पास बन जाएगा। फिर ये पूरे क्रिस्टल में क्या होगा, ये पॉजिटिव होल क्या करेगा, मूव करेगा। पॉजिटिव होल मूव करेगा जिसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस है, किसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, जो अपने पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आई ये बात? और पॉजिटिव होल प्रेजेंट होने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, पी टाइप। और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इस वजह से आप इसे क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और पी टाइप सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। इसमें होता क्या है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, एग्जांपल देखते हैं। सिलिकॉन डॉक्ड विद बोरॉन, जर्मेनियम डॉक्ड विद इंडियम। अब आप देखिए 13 ग्रुप में कौन कौन आता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये सारे किस ग्रुप के हैं बच्चों, 13 ग्रुप के। 14 ग्रुप में कौन आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और लेड। और 15 ग्रुप में कौन आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। अब आप ध्यान से देखिए, जब भी आप क्या करेंगे, ग्रुप 13 को 14 में या फिर ग्रुप 14 को 13 में डॉप करेंगे, ऑलवेज फॉर्म पी टाइप सेमीकंडक्टर। चाहे इसको आप इसके अंदर डॉप करें या इसको इसके अंदर डॉप करें, हमेशा पी टाइप सेमीकंडक्टर ही फॉर्म होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अगर आप 14 ग्रुप को डॉप कर रहे हैं 15 ग्रुप में या फिर 15 ग्रुप को डॉप कर रहे हैं 14 ग्रुप में, तो ऑलवेज इट फॉर्म्स एन टाइप सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर। इज एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। फर्स्ट, diode is a combination of n and p type semiconductor which is used as rectifier। जो डायोड होता है वो कॉम्बिनेशन होता है n टाइप एंड p टाइप सेमीकंडक्टर का। दूसरा अपने पास है ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ npn एंड pnp सैंडविच सेमीकंडक्टर। यानी कि ट्रांजिस्टर क्या होते हैं अपने पास, सैंडविच सेमीकंडक्टर होते हैं। npn होंगे या फिर pnp होगा, which is used to detect और amplify रेडियो और ऑडियो सिग्नल। समझ में आ रही बात? ये जो एप्लीकेशंस है ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके। नेक्स्ट, सोलर सेल इज ए फोटो डायोड which is used to convert light energy और radiation energy into electric energy। सोलर सेल भी क्या होते हैं, फोटो डायोड होते हैं और क्या करते हैं, या तो लाइट एनर्जी को या फिर रेडिएशन एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब अपने पास दो एप्लीकेशन हो रहा है, एक होता है ग्रुप 13 एंड 15 कंपाउंड और दूसरा होता है ग्रुप 12 एंड 16 कंपाउंड। ग्रुप 13 एंड 15 कंपाउंड में, ग्रुप 13 में आते हैं अपने पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और 15 में आते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएंगे जो ग्रुप 13 एंड ग्रुप 15 कंपाउंड फॉर्म हो जाएंगे। जैसे बोरॉन नाइट्रोजन को मिक्स किया तो बोरॉन नाइट्राइड, बोरॉन फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, गैलियम आर्सेनाइड, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। ऐसे ही जब आप क्या करेंगे, ग्रुप 12 और 16 को मिक्स करेंगे तो ग्रुप 12 के कंपाउंड कौन से होते हैं एलिमेंट्स,
जिंक, कैडमियम, मरकरी। और ग्रुप 16 होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो अपने पास क्या बनेंगे, जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम ऑक्साइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड मर्क्यूरिक टेल्यूरियम। इस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पास एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। आई एम गोइंग टू टीच यू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके लिए हम डायग्राम देखेंगे बच्चों। डायग्राम में क्या होता है, दो टाइप का मोशन होता है। एक होता है ऑर्बिटल मोशन अराउंड न्यूक्लियस, और दूसरा होता है स्पिन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, न्यूक्लियस के अंदर अपने पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जिसको प्रोटॉन कहते हैं, और एक न्यूट्रल चार्ज होता है जिसको न्यूट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन दिखाया गया है, जिससे क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। और इलेक्ट्रॉन के स्पिन से भी क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, म्यू। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, रूट एन प्लस टू बीएम। बीएम का मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन, और यहाँ पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। 1 बीएम इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। बीएम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है EH/4πmc, और मैंने यहाँ सारी वैल्यूज क्या कर दिए, पुट कर दिए। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हैं 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और अगर आप ESU में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4.803 इंटू 10⁻10 ESU। ESU में ये होता है। ऐसे ही प्लैंक कांस्टेंट होता है H, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। आप इसको लिख सकते हैं 6.626 इंटू 10⁻27 6.626 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड भी लिख सकते हैं। ऐसे ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम और -28 ग्राम होता है। सी होती है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फर्स्ट वन इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मींस these substances in which atoms, ions or molecules have one or more unpaired electron। अब क्या होता है कि इस टाइप के सब्सटेंस में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा, वन और मोर देन वन अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या प्रेजेंट होते हैं। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो क्या जनरेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे तो ये क्या होंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे। लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर देंगे तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि सारे क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब एग्जांपल देखते हैं, TiO, Ti2O3, VO, VO2, CuO, Cu+2, Fe+3, O2, Cr+3। इन सबके पास क्या है, वन और मोर देन वन अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। दूसरे सब्सटेंस की बात करते हैं। दूसरा सब्सटेंस क्या होता है अपने पास, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। दीज सब्सटेंसेस इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, यानी कि पैरामैग्नेटिक में तो अनपेयर्ड होते हैं, इसमें क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। दैट मींस मैग्नेटिक मोमेंट produced by the spin of one electron is cancelled out by the spin of another electron. That's why these are weakly repelled by the external magnetic field। यानी कि इनमें क्या होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, एक पैरेलल होगा, दूसरा एंटी पैरेलल होगा, फिर पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल। तो एक ही क्या करेगा, स्पिन को प्रोड्यूस करेगा, दूसरा क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन को प्रोड्यूस करेगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 BM हो जाएगा। और जब मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया तो वो क्या होंगे, वीकली रिपेल होंगे। आप इसके एग्जांपल देख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल है। NaCl, बेंजीन, CCl4, Cu2O, V2O5, H-, Li+, Na+, K+, Ag+, Zn+2, Cd+2, Hg+2, F-, O-2। इन सबके पास
किसी के पास भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सबके पास क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या होंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है कि जो मेटल आयंस होते हैं वो क्या होते हैं कि स्मॉल रीजन में ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं बहुत सारी आयरन नेल्स होती है, वो एक स्मॉल रीजन में क्या हो जाती है, ग्रुप टुगेदर हो जाती है। जब वो ग्रुप टुगेदर हो जाती है तो उनको क्या कहते हैं, हम डोमेन्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड डोमेन्स एंड दीज डोमेन्स आर रेंडमली ओरिएंटेड इन अनमैग्नेटाइज्ड फील्ड। जब बहुत सारे आयरन नेल्स पड़े हुए होते हैं तो वो क्या होते हैं, अनमैग्नेटाइज्ड होते हैं, तब वो क्या नहीं शो करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। बट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दीज आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब आप इनको क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, उसके टुवर्ड्स ओरिएंटेड हो जाते हैं। और जब उसके बाद आप क्या कर देते हो, उस मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देते हो तो भी ये क्या करते हैं, दे शो परमानेंट मैग्नेटिज्म, यानी कि परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन नेल्स, बहुत सारी आयरन नेल्स हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया तो क्या हो गया, उनमें परमानेंट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो गया। अब क्या करेंगे, हम कोई भी स्क्रू ड्राइवर या कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस उसके पास लेके जाएंगे तो वो भी क्या होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। एग्जांपल देखते हैं हम, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन, गैडोलिनियम, CrO2, ये सब एग्जांपल होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के। और जो CrO2 होता है वो यूज किया जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ टेप रिकॉर्डर रील एट 395। जब आप इसको क्या कर देंगे, 395 केल्विन पे हीट कर देंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये अपनी फेरोमैग्नेटिज्म, परमानेंट मैग्नेटिज्म को क्या कर देगा, लीव कर देगा, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। अब हम बात करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। इसमें क्या होता है, दीज आर द सब्सटेंस इन विच हाफ ऑफ द डोमेन्स आर अरेंज्ड पैरेलल एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द डोमेन्स आर अरेंज्ड एंटी पैरेलल, दैट्स व्हाई द नेट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी जीरो। अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो हो गया तो ये क्या होंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या नहीं होंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, MnO, Mn2O3, MnO2, Cr2O3, FeO, Fe2O3, COO, V2O3, NiO। ये जो दो एग्जांपल होते हैं ये 150 केल्विन पे तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब हम क्या कर देते हैं, टेम्परेचर 395 केल्विन कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करेंगे। ये जो टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहा है, दिस टेम्परेचर इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस चाहे वो फेरोमैग्नेटिक हो, एंटी फेरोमैग्नेटिक हो, उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट होंगे वो टेम्परेचर क्या होगा, क्यूरी टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो देखिए बच्चों, आज हम बात करते हैं कि फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं अपने पास। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस जिनमें मोर देन हाफ ऑफ द डोमेन्स आर प्रेजेंट इन पैरेलल स्पिन एंड लेस देन हाफ ऑफ द डोमेन्स आर प्रेजेंट इन एंटी पैरेलल स्पिन। तो देखिए बच्चों, जब इनमें डोमेन्स आर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं डोमेन्स को ऐसे लिख रहा हूं, जिसमें से मोर देन हाफ को मैं कैसे लिख रहा हूं, पैरेलल स्पिन में, और लेस देन हाफ को मैं कैसे लिख रहा हूं, एंटी पैरेलल स्पिन में। तो यहाँ पे देखिए मैंने टोटल 10 डोमेन्स लिए, जिनमें से 6 तो क्या है, पैरेलल है, और 4 क्या है, एंटी पैरेलल है। तो इनमें से 4 तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो 2 डोमेन्स के मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंटेड होने की वजह से जीरो नहीं होता है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। Fe3O4 जो कि कॉम्बिनेशन होता है FeO प्लस Fe2O3, जिसका नाम होता है मैग्नेटाइट। MgFe2O4 मैग्नीशियम फेराइट, ZnFe2O4 जिंक फेराइट, CuFe2O4 कॉपर फेराइट। ये सारे एग्जाम्पल होते हैं फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मैग्नेटाइट होता है वो क्या होता है, 850 केल्विन टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा, इसके लिए क्यूरी टेम्परेचर कहलाएगा।
अब हम क्या करते हैं, डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में वन और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट हो जाता है। जबकि हम क्या करते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम इसमें प्लेस करते हैं तो ये क्या होगा, वीकली रिपेल होगा, क्योंकि इसके पास सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होते हैं, डोमेन्स होते हैं, और डोमेन्स क्या हो जाते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। इसी के साथ ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी वो कंप्लीट होती है।